जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Sai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Sai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nasha Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, text number 25. Wow. Is it according to the what? Very important words. Vipadaha Santo Shashvat Tatra Tatra Jagat Guru Bhavato Darshanam Yatsya Apunar Bhavadarshanam Vipada Santuta Shashvat Vipada Santuta Shashvat Tatra Tatra Jagadguru Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsya Bhavato Darshanam Yatsya Apunar Bhavadarshanam Apunar Bhavadarshanam Vipada Santuta Shashvat Vipada Santuta Shashvat Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsya Apunar Bhavadarshanam Apunar Bhavadarshanam Vipada Santuta Shashvat Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsya Apunar Bhavadarshanam Vipada Santuta Shashvat
भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम् विपदा सन्तता शश्वत् तत्र विपदा संशता शश्वत् तदत्र जगद्गुरो अपुनर्भवदर्शनम्. और कोई? Word to word meaning. Vipadaha, calamities. Santu, let there be. Taha, all. Shashwat, again and again. Tatra, there. Tatra, and there. Jagat Guru, O Lord of the universe. Bhavataha, your. Darshanam, meeting. Yat, that which. Syat, is. Apunaha, not again. Bhavadarshanam, seeing repetition of birth and death. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: I wish that all those calamities would happen again and again, so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths. Purport: generally the distressed, the needy, and the intelligent, and the inquisitive who have performed some pious activities worship or begin to worship the Lord. Others, who are thriving on misdeeds, only regard this as status, cannot approach it in order due to being misled by the illusory energy. Therefore, for a pious person, if there is some calamity, there is no other alternative than to take shelter of the lotus feet of the Lord. Constantly remembering the lotus feet of the Lord means preparing for liberation from birth and death. Therefore, even though their so-called calamities, they are welcome because they give us an opportunity to remember the Lord, which means liberation. One who has taken shelter of lotus feet of the Lord, which are accepted as the most suitable boat of crossing the ocean of science, can achieve liberation as easily as one leaps over the holes made by the hoofs of the calf. Such persons are meant to reside in the abode of the Lord, and they have nothing to do with the place where there is danger at every step. This material world is certified by the Lord in the Bhagavad Gita as a dangerous place full of calamities. Less intelligent persons prepare plans to adjust to those calamities without knowing that the nature of this place itself is full of calamities. They have no information of the abode of the Lord, which is full of bliss and without trace of calamity. The duty of the same person, therefore, is to be undisturbed by worldly calamities, which are sure to happen in all circumstances. Suffering all sorts of unavoidable misfortunes, one should make progress in spiritual realization, because that is the mission of human life. The spirit soul is transcendental to all material calamities. Therefore, the so-called calamities are false. The spirit soul is transcendent to the material calamities. Therefore, the so-called calamities are called false. A man sees a tiger swallowing him in a dream, and he may cry for his calamity, but actually there is no tiger, there is no suffering. It is simply a cause of dream. In the same way, all calamities of life are said to be dreams. If someone is lucky enough to get
in contact with the Lord by devotional service is all gain. Contact with the Lord by any one of the 9 processes of devotional service is always a step forward in the path of going on back to God. Omagyanvirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupak Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utabadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptaganchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Canto 1. So very interesting chapter going on, that is Kunti Maharani's prayers. How many of you have memorized all the verses of Kunti Maharani prayers? How many of you memorized? Nobody has memorized. Mataji has memorized. Just see. You memorized? You memorized? So today no class, only memorization. But still we'll have class. You should memorize Kunti Devi's prayers. So please recite along with me. Namasye Purusham Tvajyameshwaram Prakrite Param Alaksham Sarvabhutanam Antarbhairavastitam Maya Javanika Channam Makyadokshajamavayam Nalakshase Mudadrisha Nato Natyadaro Yatha Paramahamsanam Muninam Amalatvanam Bhakti Yoga Vidhanartam Kadam Vashyemahi Striyah Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Nama Pankajanabhaya Nama Pankajamaline Nama Pankajanetraya Namasye Pankajandраye Tarishikesha Kalena Devaki Tansena Ruddhadi Chiram Susharpita Vimochitaham Jasatmaja Vibho Vaivanathena Muhurvipatpranat Vishanmagne Adadarshanath Asatsabhaya Vanavasa Pritchata Nekamaharadastrato Raumyastradasya Ravirakshita Vipada Santata Shashvat Tatra Tatra Jagadguru Madarshanam Yasyat Apunarbhava Darshanam Janmaishwarya Shruta Shribhir Edamanamadappuman Naivaryatya Bidatumai Pamakanchana Gocharam Namo Kinchana Vittaya Nivritta Gunavrittaye Atma Ramaya Shantaya Kaivalyapadaye Namaha
मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र अनाम्यन्मितः कलि न वेद कश्चित् भगवान् सुकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् देशश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्मकर्मज विश्वात्मन् अजस्याकर्तुरात्मनः यन्निशिश्रियादुषु तदत्यन्तविडम्बनं गोप्या ते कृतागसिदामतावत् यादेशकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया सितस्य सा मां विमोहयति भिर्यप्यद्विभेति हुनक्तये यदोह प्रियस्यान्मावये मलयस्येव चन्दनम् अबरे वसुदेवस्य क्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्तमस्य क्षेमाय ये च सुरद्विषां भारावतारण्यन्ये भुवो न वै बोधदौ सीदन्त्या भूरिभारेण रातो हि भुवार्पितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निधि केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति विष्णसः वन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयैव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् यज्जनस्तं सकृते हितप्रभो जुहासति सुत्सुहृदोऽनुजीविना येषां न चान्यद्भवतपदाम्बुजात् नारायणं राजसुयोजितां हसाम् केवया नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवा भवतो दर्शनं श्रीकानामिवेशितुः हेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाधरा तदैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षितैः याइमे जनविदा शुद्धा सपक्वौषधी विरुद्धा अनाद्रे निदन्तो भेदन्ते तवीक्षितैः विश्वेश्वविश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहभाषमिमं चिन्ति दृढं काण्डुषु वृष्णुतु त्वयि मे अनन्यविषया मतेर्मधुपते स्वकृत् रतिमुद्वहदा दद्धात् गङ्गेवौगमिदन्मदी कृष्ण कृष्ण सखा कृष्णवृषभानविद्रत् राजन्यवंशदहनानपवर्तवीर्या गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतारा योगेश्वराय किल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वराय किल गुरो भगवन् नमस्ते. Hare Krishna. So this is a very interesting verse. That is Kunti Maharani's prayers. And even to chant the verse is very fearful. This verse makes Kunti Maharani's prayers specifically meant for sannyasis, vairagis. Every prayer is meant for everyone, but specifically meant for some people. Some prayers are specifically meant for some category of people. It has been declared that Kunti Maharani's prayers are specifically meant for vairagis. Just see, in Bhagavatam there are so many prayers, 96 prayers have been identified. Among them, Kunti Maharani's prayers are the first among the 96. First prayers. Of course, there are some prayers, they are Mangalacharan mostly. But if you see the series of verses, which becomes a garland of Krishna. So Kunti Maharani's prayers, they become they are the premier prayers, the first prayers in the Bhagavatam. Like they are saying in English, ladies first. So now, not only that, Kunti Maharani's prayers are
specifically meant for the Vairagis. The Lord made a woman set standards for what is Vairagya. Vairagya doesn't mean that you run away from your house. Vairagya means you accept this verse as your life and soul. You naturally accept this verse as your life. It is Vipadaha Santata Shashvat Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Isyat Apunarbhava Darshanam. Now, there is a very famous prayer which everybody does during the Ganesh Chaturthi and other Durga Puja and Navaratris. They say in the Arati, Jai Jagadish Hare Sukh Sampatti Gar Aave Dukh Mite Anata Tera Kya Lage Tera Sab Kuch Mujhe Arpan. क्या जरूरत है भगवान आपको? What is the use of? You don't require anything, I require. So whatever you have, you just offer it to me. So this is a prayer. I don't know who wrote this prayer, stupid prayer, but it's not found anywhere in the scriptures. Somebody in depression, he wrote that. When somebody is in depression, they write some philosophy, and that becomes the standard for everyone to follow. They become an acharya. Depression person becomes an acharya. Very depressed person. He wrote that, Shivananda Swami. The Shivananda Swami of Rishikesh, he wrote it. I don't think so. He is a sannyasi, why he should write that? Anyhow, but become very famous. Tera sab kuch mujhe arpan. Kya lage tera? Why require? But Kunti Mani's prayers are exactly opposite. He says, let difficulties come more and more in my life. And then she addresses Krishna as Jagat Guru. So here, these dangers, what are those dangers? She had listed in the previous verse, 24th verse. So the dangers which she has listed, he says, let them come more and more. What are the dangers which is listed in the previous verse? Vishan, Mahagni, Purushad Adarshana, Asatsabhaya, Vanavasa Krichataha, Vrudhe Aneka Maharatastrato, Draumyastra, Taschasma Hare Ravirakshita. So she lists around dangers which she experienced. Vishan, we know that twice Bhima was given poison. Krishna saved. Mahagne, Lakshagraha, so many, Krishna came and saved them. Purushad Darshanat means man-eaters, Hidimba and all these things, they came. Then Bhima got married to Hidimbi. But also, and Asatsabhaya, Draupadi, Asatsabha, Vanavasa Krichataha, there were so many difficulties which they had to undergo during Vanavasa. What kind of difficulty, just imagine. Durvasa was sent by Duryodhana. You take your 10,000 disciples there, the bhagya what you gave to me of feeding you, the same bhagya should be given to my brother also. Yudhishthir Maharaj is there. You go and give him the same bhagya. Just see. Durvasa went, and what happened there. Krishna came. Already Yudhishthir Maharaj told, okay, don't worry, go and take bath. Vimal Kund, we are just preparing big feast for you. He came and told Draupadi, take the Akshay Patra. 10,000 people are there. Durvasa has come. You have to feed a big feast. She told, no, it's over now. Akshay Patra is over. I've eaten food. Once I eat food and wash it, you'll not get, only next day you'll get. Then Yudhishthir told, no, something must be there. Just see what to do. By the time Krishna came and told Draupadi, I'm very hungry, feed something. Just see. And you get now, something must be there, little bit. He took one leafy vegetable, and then Krishna stomach was so full, and he says, oh,
and truptaha. Immediately, yasmin tushte jagat tushte. Krishna's stomach is full, everybody's stomach is full. So all the sages who had come, Durvasa's disciples, they're taking bath. All of a sudden, they're so hungry, and all of a sudden, they felt that they had eaten food till here. And if they go and they can't eat anything, it's an insult, you know. You go to a Brahmin, goes to somebody's house and they feed. If you don't eat, it's an insult for him. So they all ran away from there only. So Vanavasa Krichataha. Aneka Maharatastrato. And there was Vanavasa Krichataha. Mrude Mrude Aneka Maharatastrataha. Abhimanyu. And of course, Abhimanyu, he became the hero. He became eternal by fighting. What all Krishna did to protect Arjuna. He was fighting like anything. Arjuna had taken a vow that today I am going to kill Jayadratha. So what happened? आप जैसा बोलोगे वैसा बोलूंगा ना. आपको अंग्रेजी बुक रखा तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा ना. अंग्रेजी किताब रखा बोलती. ठीक है. बैंगलोर में है अभी क्या 3 भाषा चलती है. चौथा भी थोड़ी भी है, कोंकणी भी है, 5वां भी. मैं क्या करूँ बताओ. इंग्लिश, हिंदी, बाद में कन्नड़ा, तुलु, कोंकणी, 5 भाषा है. मलयाली भी थोड़ा सा मलयाली भी है. तो मलयाली 6 भाषा लेके क्या करो बताओ. ओरिया भी है, ओरिया लोग भी है, ओरियन कांग्रेगेशन भी है. जगन्नाथ है तो ओरिया तो रहेंगे. तो कौन सी भाषा, चलो हिंदी बोल लेते. हाँ, क्या बोल रहा था मैं. हाँ, इतना बहुत समस्या थी. तो इतना अर्जुन की रक्षा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था सूर्यास्त से पहले क्या करूंगा. अचानक सूर्यास्त हो गया तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को मारो उसको. नहीं, सूर्यास्त होगा, कैसे मार सकता हूं. देखो सूर्य दिख रहा है. क्या हुआ, सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने सूर्यास्त करा दिया था, लेकिन सूर्यास्त नहीं हुआ था. ये पागल आया तो उसको मार दिया, खत्म. तो अनेक अनेक महारथास्त्र, तो कितनी बार क्या क्या नहीं किया रक्षा करने. युद्ध समाप्त हो गया. भगवान ने कहा अर्जुन को उतरो. अर्जुन ने कहा पहले आप उतरिए. कृष्ण कहा आखिरी बात मान ले बेटा, उतरो पहले, बाद में मैं करता हूँ. तो रथ से अर्जुन उतरा. तो बाद में कृष्ण भी रथ से उतरे. तो अर्जुन ने देखा पूरा रथ धूल धूल हो गया, था ही नहीं. तो कृष्ण बैठे थे, इसके से रथ अपने स्थिति में था, नहीं तो धूल था, राख हो गया था वो. तो अच्छा हुआ अर्जुन पहले उतरा, नहीं तो वो भी चले जाता, खत्म हो जाता. तो इससे पता लगता है कि अनेक महारथास्त्र. तो अभी कुंती देवी कहती है द्रौम्यस्त्र, द्रोणाचार्य के पुत्र जो है अश्वत्थामा, उनका अस्त्र के द्वारा आपने मेरे प्रत्यक्ष मेरे सामने परीक्षित महाराज की रक्षा किया. इससे क्या पता लगता है कि आप मेरे ऊपर ज्यादा कृपा की. देवकी के ऊपर आपने कृपा किया, लेकिन उससे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर किया. अब बताओ, कृष्ण ने अपने भाइयों को रक्षा किया. 6 पुत्र देवकी के पुत्रों मर रहे, लेकिन कुछ आए रक्षा करने के लिए. कुंती के 5 पुत्रों को उन्होंने रक्षा किया, है कि नहीं. तो बताओ किसके ऊपर ज्यादा कृपा है. कुंती के ऊपर ज्यादा कृपा है. कुंती देवी स्मरण करती है, कहा हे प्रभु आपने मेरे ऊपर ज्यादा कृपा किया, आपकी माँ से ज्यादा मेरे ऊपर ज्यादा कृपा किया. कुंती देवी का स्थान देवकी से 1 स्टेप ऊपर है, क्योंकि कुंती देवी जो है दोनों लीलाओं का साक्षी है. ब्रज लीलाओं का भी साक्षी है. एक बार ब्रज में गए थी और कृष्ण के दामोदर लीला को देखी. तो इसलिए विपद गोप्यादेश तो कहती है. तो कुंती देवी का 1 स्टेप आगे है देवकी से. तो क्यों, कारण क्या है. कुंती देवी कहती है त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्घणात्.
तो एव नाथेन, मैं आपको ही नाथ मान के जी रही हूँ। मेरे लिए और कोई नाथ है नहीं, मेरे पति का मृत्यु हो चुका है और देवकी का पति वसुदेव जीवित। इसलिए देवकी को अल्टरनेटिव है। अगर तकलीफ आती है देवकी बोल सकती है, हे प्रभु, हे पतिदेव, आप रक्षा करो। तो लेकिन मेरे लिए और कोई रक्षा करने वाला था ही नहीं, तो यही बात, तुम्हारे अलावा और कोई नाथ है ही नहीं। इसलिए कृष्ण, मैं आपसे इसलिए प्रार्थना करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई है ही नहीं, इसलिए आप बार बार आके मुझे रक्षा की। अभी आप जा रहे हो, आपका जाने का कारण क्या बताइए? अगर जाने का कारण ये है कि हम सुखी हैं, तो जाने का कारण ये है कि हमारे पास विपद नहीं है, हम सुरक्षित हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और विपद आए। क्योंकि आपने एक रूल बनाया है क्या, जब मेरे भक्त संकट में तभी आता हूँ, ऐसा रूल बुक में ऐसा है, शाश्वत रूप में संकट रहे ताकि आप हमारे साथ में शाश्वत रूप में रहोगे। तो ये जो विपद है वो हमारे लिए तो वरदान है, विपद वरदान है, कष्ट जो है वरदान है। तुरंत जैसे कष्ट आता है तो हम सोचते हैं कि अरे भगवान हमको कष्ट क्यों दिया, लेकिन कष्ट को वरदान के रूप में जो स्वीकार करता है वो भक्त है। कष्ट को वरदान के रूप में स्वीकार करता है वो भक्त है, और वो वास्तविक शिष्य हैं। और भगवान सारे जगत को शिक्षा देते हैं, कष्ट दे के शिक्षा देते हैं। इसलिए जगत गुरु, आप सारे जगत के गुरु हो। आप क्या करते हो? सारा जगत को श्रेय प्रदान करने के लिए तो आप क्या करते हो? कष्टों को प्रदान करते हो, दुख प्रदान करते हो। इसलिए पूरा जगत जो है कारुण्यम तत्क्रिया, तीनों ठाकुर कहते हैं भगवान का विशेष करुणा है। जेल में अगर दुख नहीं मिलेगा, अगर सुख मिलता है, तो सभी लोग जेल में रहने के लिए प्रयास करेंगे। एक पुलिस ऑफिसर थी, बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि अच्छा पुलिस ऑफिसर को कोई चाहता नहीं है, कोई पॉलिटिशियन चाहता नहीं, बार बार ट्रांसफर हो रहा था, सभी पॉलिटिशियन परेशान उससे, क्योंकि बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर है। उसको बनाया गया, तिहाड़ जेल का इंचार्ज बना दिया, चलो कहीं का नहीं, चलो जेल में रह जाओ। तो क्या हुआ, इतना अच्छा व्यवस्था कर दिया तिहाड़ जेल में, इतना अच्छा व्यवस्था किया। जितने भी कैदी थे उनको टाइम टू टाइम अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिलता था, सब काम कर देता, सबको पगार मिलता था। कुछ कैदियों का रहा हुआ छूट गए, एक हफ्ते बाद वापस आए, मतलब वो जेल में रहना, मतलब नहीं रख सकती हूँ तुम लोगों को। क्यों नहीं रख सकते? हम तो जेल में रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जेल में आपने जिस प्रकार हमको देखभाल किया, हमारे घर में कोई देखभाल नहीं कर रहा है। जो भोजन हमको जेल में मिलता था घर में नहीं मिल रहा है, जेल में ज़्यादा सुखी है, वापस आना चाहते हैं। क्या है, आपका कोर्ट ऑर्डर होता तभी तो ले सकते हो, तो ठीक है, नहीं आपके बिना नहीं। तो क्या किया उन्होंने, कुछ नौकरी दिया इधर, ऐसा कितने लोगों को नौकरी दिया। उधर भी सब पॉलिटिशियन परेशान इससे। तो इस साल में कोई अच्छा होता है ना, उससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर आपसे कोई परेशान है, ये समझो कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है, हाँ, से परेशान है। और भगवान परेशानी देते हैं, हाँ, क्योंकि वो गुरु है। गुरु वो है जो परेशान करता है, लेकिन सही बात। तो कुंती देवी कहती हैं आप जगत गुरु, सारा जगत का आप गुरु इसलिए क्योंकि आपने जगत को ऐसा बनाया है, सब लोग परेशान हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो परेशान नहीं है? लेकिन समझते नहीं है कि ये परेशानी क्यों आ रहा है। परेशानी आ रहा है ताकि आप भगवान का शरण लें। जैसे हर बच्चे को क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता ही है, एक को समझ में आता है, कोई नहीं समझ में आता है, अंतर वही है। क्वेश्चन पेपर एक ही है, ये जगत तो सबके लिए एक ही है। ऐसा नहीं कि आपके लिए अच्छा है दूसरे के लिए खराब है,
यही भालो, यही मंद, यही सब भ्रमा। सबके लिए एक ही जैसा, सबको मरना ही पड़ेगा, सबको कष्ट है। बताओ इस संसार में एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको कोई कष्ट नहीं है। जैसे सभी बच्चे को एक ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक बच्चा पास होता है, दूसरा बच्चा फेल होता है। क्यों? उस क्वेश्चन का जवाब मालूम है इसलिए पास हो गया, मालूम नहीं तो फेल हो गया। तो ऐसे ही ये जगत एक ही क्वेश्चन पेपर देता है सबको, एक ही परेशानी देता है। जब उस परेशानी के पीछे जो रहस्य इसको मालूम है, क्या वो जगत गुरु। मेरे गुरु जी कौन है? सबके गुरु कौन है? कृष्ण है। जगत गुरु, जगत त्रय गुरु, वो कृष्ण के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर क्वेश्चन नहीं है, कृष्ण ने दिया समस्या, चलो कृष्ण का शरण लेते हैं। कृष्ण का दिया गया क्वेश्चन क्यों दिया उन्होंने? शरण लेने के लिए। तो हमारे जीवन में हर एक प्रसंग कृष्ण का शरण लेने के लिए एक मौका है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर टू कृष्ण। हर एक प्रसंग, हर एक घटना, चाहे बारिश होना है, चाहे धूप हो, चाहे मिठाई मिलना हो या करेला मिलना हो, हर चीज कृष्ण के द्वारा दिया गया एक मौका है, एक प्रसंग, एक ऐसी मौका है जिसके द्वारा आप उनका शरण ले सकते हो। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर टू कृष्ण। सो इस प्रकार भगवान शिक्षा देते हैं, शरणागति का शिक्षा देते हैं। जगत गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रील विश्वनाथ जगत ठाकुरवाद इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। सारा संसार को श्रेय प्रदान करने के लिए भगवान क्या करते हैं? वो दुख देते हैं। तो वो दुख देते हैं तो क्या होता क्या है? जो व्यक्ति का मन विचलित हुआ है, अनस्टेडी हुआ है, किसके वजह से? भौतिक सुख के वजह से जिसका मन विचलित हुआ है, वो मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए दुख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सुख जो है व्यक्ति को बर्बाद करता है, सुख सुविधा व्यक्ति को बर्बाद करता है, कष्ट जो है उसको मन का स्थिरता बना के रखता है। इससे आप देखिए जितने भी अमीर परिवार के लोग होते हैं, उनके बच्चों को इतना सुख सुविधा देते हैं जिसकी वजह से सब बिगड़े हैं। जितने भी अमीर बाप के बेटे बेटियां होती हैं सब बिगड़े हैं, क्योंकि उसको बहुत सुख दिए। बाप सोचता है कि मैं तो सुख को अनुभव नहीं कर पाए, इसको सुख दूंगा, तो सुख उसको क्या करता है? ऐसा बिगाड़ दिया, उसका मन बहुत परेशान हो जाता है, मन मानसिक पेशेंट हो जाते हो लोग। अब देखो जो मिलिट्री में है उसको बहुत कष्ट देते हैं, तो मन स्थिर होता है। वैसे छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, जो कष्ट उठाया है वही व्यक्ति का मन स्थिर होता है। मन की स्थिरता कष्ट को अनुभव करने से आती है। तो जो कष्टों को अनुभव करता है, जो खतरे को सामना करता है, वो इस संसार में उसकी मन स्थिर रहता है। मन की स्थिरता का अर्थ क्या है? भगवान का स्मरण होता है उसका। और इसलिए कुंती देवी कहती हैं कि ये जितने भी विपद है, कष्ट है या खतरे हैं, ये सब आपका कृपा है, आपकी कृपा शक्ति से उत्पन्न हुआ है। ये पूरा जगत जो है भगवान की कृपा शक्ति। विपदा संतुता शाश्वत विपदा। इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक श्लोक का अनुवाद लिखते, कोट नहीं करते हैं, क्या कि पदम पदम विपदम, पदम पदम विपदम विपदम न तेषाम। ये संसार कैसा है? पदम पदम विपदम, हर पद में विपद है। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्येशो मुरारे। भवाम क्या है? वत्सपदम, वत्सपदम स्मा, वत्स के पद के समान है। क्यों? अरे संसार कैसा है? पदम पदम ये विपदम न तेषाम। तो ये विपद भगवान ने क्यों बनाया? हमको शिक्षा देने के लिए बनाया। इसलिए विपद जो है हमारे शिक्षा का
एक माध्यम होने के नाते भगवान का कृपा है। हर एक कष्ट को, हर एक विपद को जब भगवान की कृपा के रूप में देखना ही आपका मुक्ति है। मुक्ति यही है। परीक्षा, भक्ति का परीक्षा कब होता है बताओ? भक्ति का परीक्षा विपद आता है उसी समय होता है। विपद के समय आप हंस सकते हो, ये समझ लो भक्ति में आप पास हो गए। जब सब ठीक ठाक रहता है उस समय क्या है, अरे बोल कैसे हो, सब ठीक। ये विपद आता है तो आपकी परीक्षा है। परीक्षा में पास होने का अर्थ क्या है? उस विपद को किस रूप में देखना है? भगवान की कृपा के रूप में देखता है। मेरे गुरु का कृपा है, भगवान गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। यद, तो कुंती देवी बाद में क्या कहते हैं? भवतो दर्शनम यत। यत शब्द का अर्थ व्याख्यान करते हैं। यद मतलब वो जो विपद जिसका मैंने वर्णन किया है, संसार में जो विपद है वो विपदों के द्वारा, यद मतलब उनके द्वारा, विपदों के द्वारा, भवतः दर्शनम आपका दर्शन होता है। कृष्ण का दर्शन विपदों के द्वारा होता है। जब ये हम सोचेंगे विपद कृष्ण का कृपा है, उस समय कृष्ण दर्शन देते हैं मन में। साक्षात दर्शन भी देते हैं, मानसिक दर्शन भी देते हैं। भवतः दर्शन, लोग बोलते हैं ना कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? मंदिर आने से निश्चित रूप में होगा, लेकिन आप कृष्ण का दर्शन नित्य कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन में आया हुआ दुख को कृष्ण का कृपा मानोगे तो कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए यद भवतः दर्शन यत, यानी जिनके द्वारा आपका दर्शन होता है, थ्रू विच वी कैन हैव दर्शन। हमारी आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं हो पाता क्योंकि हमारे आंख जड़ है। जब विपदों को कृपा मान के चलेंगे तब कृष्ण का साक्षात दर्शन हृदय में होता है। 100% मान के चलो। जब आपका दर्शन होता है, भवतः दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, तो उसके द्वारा वापस इस संसार को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं जीव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं। जब एक भक्त विपदों में आपका दर्शन करता है तो क्या होता है? क्या वर्णन करते हैं? विपदों में, हे प्रभु, विपदों में जब वक्त आपका दर्शन करता है तब उनके हृदय में एक अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है? आपकी मधुरिमा का आस्वादन होता है। तो जैसे कैसे भाई? जैसे एक बच्चा माँ को बहुत परेशान करता है, कि इतना परेशान करता है पूछो मत। तभी ये माँ सोचती बस क्यों पैदा किया इसको, बस ये चले जाए, मैं चले जाऊंगी, बस परेशान होंगे, बस जाने दो, ये शैतान का के परेशान। तभी रोती भी है, ये शैतान है, मैं बच्चे इतना परेशान कर रहे, क्या पूछो, मैं मर जाऊंगी इससे, मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसी रोती भी है। तब आप बोलोगे सच में परेशान हो? हाँ। बच्चा तुमको बहुत परेशान करता है? हाँ। परेशानी चाहिए तुमको? नहीं चाहिए मुझे। चलो तुम्हारा बच्चा मैं लेके जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा है। अरे मैं नहीं दूंगी। क्यों? वो बच्चा परेशान कर रहा है, उसको परेशानी हो रही है, परेशानी नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या बच्चा नहीं है? परेशानी नहीं है तो बच्चा दे लेके चले जाऊंगा मैं, फिर भी नहीं 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 नहीं, नहीं छोड़ूंगी। क्यों बताओ? कारण क्या है? क्योंकि वो परेशानी में कुछ मधुरिमा का आस्वादन हो रहा है कि नहीं? तो एक भक्त मेरे पास आया, बोले मैं बहुत परेशान, इतना सेवा पूछो, परेशान हो गया मुझसे। तो मैं सुन लिया, आधा घंटा सुना, ठीक है चलो तुम्हारा सारा सेवा छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ, तुमको अच्छा स्थान में देता हूँ, आराम से भजन करना। तो नहीं बोले ठीक है। तो तुम तो परेशान था,
क्या प्रभु परेशानी होती है, लेकिन क्या सेवा छोड़ के कैसे रहेंगे बताओ। तो परेशानी में एक मधुरिमा होती है, उसका उल्लेखन करते हैं। जिस विपद में आपका दर्शन होता है, एक अद्भुत अनुभूति हृदय में प्रदान करते हैं भगवान। वो क्या है, क्या है वो अनुभव? आपका स्वरूप से उत्पन्न हुआ मधुरिमा का आस्वादन। आपके स्वरूप से उत्पन्न हुआ मधुरिमा का आस्वादन वो विपद में ही होता है। विपद में कब होता है? विपद को जब आप कृष्ण की कृपा मानोगे, तब कृष्ण हृदय में दर्शन देते हैं, आपकी मधुरिमा, उनकी मधुरिमा का आस्वादन कराते। ये क्रम संदर्भों में जीव गोस्वामी महाराज ने इस बात को लेकर किया। चलिए थोड़ा सा हम वैष्णवानंदिनी टीका जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु का है, उसको थोड़ा सा स्मरण करते हैं। कुंती महारानी का भाव व्यक्त करते हुए बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं, हे प्रभु, आपने जितना भी लिस्ट बताया ना, मैंने पिछले श्लोक में विपद करके बताया ना, मैंने गलती हो गया। विपद नहीं है, ये मेरा भाग्य है। पिछले श्लोक में विपद का लिस्ट दिया ना, अरे मैंने गलती कर दिया, ये विपद नहीं है, क्या है? मेरा भाग्य है। पहली बात, क्योंकि जितने प्रकार के विपद आए, जितनी जगह आए और जितनी समय में है, यानी हर परिस्थिति, हर समय में, हर काल में और हर जगह पे आया है, वो सब उस समय जब भी विपद आया आपका दर्शन हुआ, जहां विपद आया आपका दर्शन हुआ, जिस परिस्थिति में विपद आया आपका दर्शन हुआ। ठीक है, उस दर्शन से वापस संसार को देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये कहते हैं बलदेव विद्याभूषण प्रभु, ये इस प्रकार का वर्णन करना, उसको अनुज्ञालंकार कहते हैं। अलंकार शास्त्र है। अलंकार शास्त्र बहुत प्यारा शास्त्र होता है। आजकल बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बचपन में थोड़ा बहुत हमको पढ़ाए थे, क्योंकि सबका बुद्धि मंद हो गया। अलंकार शास्त्र किसी को मालूम ही नहीं। अलंकार शास्त्र एक बहुत अद्भुत शास्त्र होता है। उपमा उपमेय क्या होता है, अलग प्रकार के अलंकार होते हैं। अनुज्ञालंकार में के साथ वर्णन हो रहा है दुःखस्य प्रार्थनानुज्ञा तत्रैव सुखदर्शनात्। जो दुख की प्रार्थना करता है, दुख की प्रार्थना करने से सुख मिलता है, ये कहाँ का न्याय भाई? ये अनुज्ञालंकार है। अनुज्ञालंकार में ये दोनों परस्पर विरोधाभास है। ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हो किसका? क्योंकि किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? दुख की प्रार्थना कर रही है। दुख की प्रार्थना करने से सुख मिलता है, ये तो ये कहाँ का न्याय है? ये अलंकार शास्त्र है। विपरीत शब्दों को, विपरीत भावनाओं को व्यक्त करना, इन दोनों के बीच में संबंध देखना, अलंकार है। ये वैष्णवानंदिनी टीका है बलदेव विद्याभूषण प्रभु का, उसमें आपको ये चीज प्राप्त होती है। चलिए थोड़ा सा हम विजय ध्वज तीर्थ का भी हम थोड़ा कमेंट्री देख लेंगे। और विजय ध्वज तीर्थ कहते हैं, हे प्रभु, जब हमारे जीवन में विपद आता है, आपका दर्शन करने का भाग्य प्राप्त होता है, और आपका दर्शन प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस संसार में कहीं भी जाओ, हर जगह केवल विपद है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और विपद क्यों देते हो? आज पता लगा मुझे कि आपका स्मरण करने का एक मौका है।
नहीं तो आपका कौन स्मरण करेगा? हाँ, उस समय कैसा स्मरण करना चाहिए? तो ये नाथेन, ये विपद से मुझे रक्षा करने वाला इस संसार में कोई और नहीं है, केवल आप ही हो। मेरा मुझे विपद से त्राण करने वाला है, करने वाले हैं, उसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए आपका दर्शन करने का उद्देश्य क्या है? स्मरण करना। आप दर्शन देते हो ताकि मेरा भक्त आपका स्मरण करे। देखो, इस प्रसंग में आपका दर्शन करने का अर्थ ही यही है कि पुनर्जन्म नहीं हो रहा। मान लो पुनर्जन्म हो भी गया, अब पुनर्जन्म में भी आपका दर्शन होता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या फायदा? ऐसा पुनर्जन्म नहीं होना, इसमें आपका दर्शन नहीं है। ये वास्तविक मुक्ति है। भगवान का दर्शन करना ही मोक्ष है, भगवान का स्मरण करना ही मोक्ष है, उससे बड़े है, उससे परे है। ये बात जो है हमारे विजय ध्वज तीर्थ का वर्णन है। चलिए थोड़ा सा हम वल्लभा पदरत्नावली को भी भागवत प्रकाश का है, पदरत्नावली विजय ध्वज तीर्थ का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और कमेंट्री देखिए, वल्लभाचार्य का बहुत लंबा चौड़ा है, कभी हम और देख लेंगे। आपका शाश्वत स्मरण के द्वारा जितने भी दुखों का श्रृंखला है सब कुछ नष्ट हो जाता है। और हाँ, सेम वही है। तो लास्ट में कहते हैं, विजय कहते हैं पदरत्नावली में, आपका जो दर्शन करने से ये समझ लो कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा, अगर हो भी गया तो केवल एक ही कारण के लिए होगा, आपको दर्शन करने के लिए। ये बात लेके समाप्त कर देते हैं। मतलब आचार्य कमेंट्री का हम बाद में कभी देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? हाँ, ये सुना कि कुछ कष्ट आते हैं तो मन में स्थिरता, हाँ बराबर। और ये कष्ट बहुत ज्यादा हो गया तो फिर से मन विचलित हो जाता है। तो हाँ, कहते हैं कि कुछ अच्छा होगा तब स्थिरता आएगी, तब पीसफुली भक्ति कर सकते हैं। ये कंट्राडिक्शन समझते हैं। देखो कि जब कोई दवाई देते हैं ना बच्चों को, किसी को भी, तो उतना हद तक दवाई देने में सहन कर सकता है। तो ये कृष्ण भक्ति का फिलॉसफी ऐसे ही है। इससे गजेंद्र का भी प्रार्थना है। गजेंद्र प्रार्थना में क्या लिखा है? हे प्रभु, मैं जानता हूँ शुद्ध भक्त जो है केवल आपका अनन्य भजन करते हैं, अनन्य भजन करते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। इससे पहले मुझे ये दुख से निकालो, मैं आपको भजन करूँगा। तो अलग अलग लोगों की अलग प्रकार की चेतना होती है, इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की दवाई देना पड़ता है, अलग अलग डोसेज में। ये जो है शुद्ध भक्ति का डोसेज है, ठीक है। उनका जो कहना है, मेरा अगर समय ठीक होगा तब मैं भजन करूंगा,
कभी करता है क्या कोई? उस समय भूल जाता है व्यक्ति। लेकिन उस समय उनको सांत्वना देने के लिए बोलना पड़े, ठीक है करो, अच्छा से प्रार्थना करो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये क्या है, वो भूल जाता है। मुझे कितने लोग बताए प्रभु थोड़ा बिजनेस ठीक हो जाएगा ना मेरा, थोड़ा अच्छा कमाया हो तो डोनेशन दूंगा, कोई नहीं दिया। उल्टा कष्ट आया तो वो टाइम में देके गया। जब पता नहीं कुछ तो समस्या आई थी, कुछ तो हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। इस बार डोनेशन कम होगा, हाँ हुआ था ना, नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी वो टाइम में बहुत बहुत लोगों का नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट गिर गया, सब कुछ था। उस समय ज़्यादा डोनेशन आया। संकट में जो ज़्यादा सेवा करता है व्यक्ति, सुख में कहीं करता है, भूल जाता है। जगत ही ऐसा है। हाँ, तो उनको हम बोलेंगे ठीक है, अच्छा प्रार्थना करेंगे भगवान को ठीक हो जाए। क्या ठीक होगा? बहुत ही कोई ठीक हो सकता है क्या? एक समस्या है, दूसरी समस्या, बस। वास्तव में पीसफुल रहने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यद्भव्यं तद्भवंत भगवत पूर्वकर्माण रूपम एतत् प्रार्थ्यम महोदम जन्म जन्मांतरेपि तत्पादाम्बुरुगता निश्चला भक्ति। तुलसीदास राजवा ने क्या प्रार्थना किया? मेरे कर्म में जो है वो होने चाहिए, मेरे कर्म में जो है यही प्रार्थना है। बस आपका स्मरण रहे, आपकी सेवा चलती रहे, बस सेवा। हाँ, थोड़ा बहुत उपचार जो है, जो सेवा करने के लिए जो आवश्यकता है उसको कर देंगे, बस हेल्थ के हिसाब से हो, कोई और हिसाब से। ये अंततः कर्म से परे कोई है, कर्मों का अनुभव करना ही पड़ता है। कितना भी उपचार कर लो, दैट एक्सपीरियंस है। बाह्य रूप में परिवार वाले, समाज के दिखाना पड़ता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अंदर अंदर कोई विश्वास मत करना। किसी ने पूछा प्रभु जी सुख शांति से कैसे जिए संसार में? मैंने कहा ड्रामा करना सीखो। है कि नहीं? मान लो कोई रोल कर रहा है, रावण का रोल कर रहा है, तो रावण जैसा व्यवहार करने का, ये अंदर जानता है मैं रावण नहीं हूं। या कोई भी हो, कृष्ण का रोल कर रहा है, कोई भी। उसी प्रकार आप इस संसार में क्या रोल कर रहे हो? पत्नी का रोल, पति का रोल, बच्चे का रोल, ये रोल कर रहे हो। तो रोल के हिसाब से अच्छा रोल प्ले करने का। बाद में मालूम है ये रोल प्ले से कोई सीन परिवर्तन नहीं होने वाला, सीन तो वही होने वाला है। कोई ठीक है। हाँ, इसका मतलब अन्य लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी बोल सकते हैं, लेक्चर में बोलते हैं कि इसका कोई व्यस्त नहीं होने चाहिए। हाँ, बराबर है। ठीक है। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।